اور اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی سی کوشش اور کر لیجیے۔ جو حضرات بڑی عمر کے تھے وہ تو بات مان گئے، لیکن جو اس سے کم والے ہیں وہ بھی تھوڑی سی اور کوشش کر لیجیے۔ اور بیچ والے آپ لوگ نہیں، آپ موبائل لے کے نکل جاؤ۔ یہ بچے سائڈ، بچہ اٹھو تو ادھر چلے جاؤ، سائڈ میں اٹھ جاؤ، فوراً اٹھ جاؤ، سارے بچوں کو وہاں چلے جائیں، اٹھو بیٹے جاؤ، اپنے اپنے کھلونے اور موبائل لے کے وہاں پہنچ جاؤ۔ بھیا تکبیر والے رومال سر پہ باندھ دیجیے۔ آپ کی تکبیر ماشاءاللہ بڑی زوردار تھی، آپ رومال باندھ دیجیے سر پہ۔ بیٹا اٹھ جاؤ ذرا سر۔ ماشاءاللہ تکبیر والے بھی ہیں اور پترکار بھی ہیں۔ اچھا جی تھوڑی سی گنجائش اور کر لیجیے، تھوڑی سی کوشش کر لیجیے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ بہت صحیح، بہت صحیح بولے گا کب تک درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہاں حضرات علماء اکرام کی کثیر تعداد اور ہمارے کچھ رفقا اور ہمارے بائیں سائڈ تشریف فرما حضرت والا دامت برکاتہم بڑی محبت فرماتے ہیں، اور ابھی حوالہ دیا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق تھا، والد صاحب کے تعلق سے کہا، اور کچھ محبت میں تشریف لائے، اور حضرت ناظم اجلاس صاحب نے مجھ سے فرمائش کی، حکم کیا کہ کچھ نعت سنا دیجیے۔ اب یہ طے نہیں کیا کون سی سناتے ہیں، تو والد صاحب کے دو اشعار ہیں، ابھی تو آپ حضرات نے بہت سنا ہے۔ درود پاک پڑھنے سماعت فرما لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں میرے سرکار کی بات ہوگی، جہاں میرے سرکار کی بات ہوگی، وہاں ابر رحمت کی برسات ہوگی، بے شک بے شک، وہاں ابر رحمت کی برسات ہوگی۔ یہ محفل ہے آقا کی، بیٹھو ادب سے، یہاں پر فرشتوں کی بارات ہوگی، یہاں پر فرشتوں کی بارات ہوگی۔ بھیا بچوں تم سمجھ رہے ہو سبحان اللہ کے معنی؟ بولنا نہیں، چپ کے بیٹھو۔ جتنے ادب کے ساتھ سنو گے اتنا ہی فائدہ کرے گا، اور بے ادبی سے تو واویلا میں سب چلا جائے گا، اب تو اسی میں جاتا ہے۔ مجلسوں کی قدر کرو۔ جو حضرات باہر دور دور تک کھڑے دکھائی دیتے ہیں روڈ کے اوپر، اگر ان تک یہ آواز پہنچ رہی ہے تو ان سے بھی گزارش ہے مجلسوں کی قدر کر لو۔ ناقدری کی بنیاد پر کئی سال تک مسجدیں بند رہی ہیں، اجلاس نہیں ہو سکے ہیں، چاہت کے باوجود اکٹھا نہیں ہو سکے ہیں۔ مجلسوں کی ناقدری نہ کرو۔ جن جن چیزوں کی ناقدری ہوئی ہے وہ چیزیں ہاتھ سے گئی ہیں۔ اللہ ہر چیز کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل کی ایک عابد کا ذکر کیا، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے 500 برس اللہ کی عبادت کی، ایک کشتی خریدا، کشتی میں بیٹھ کر کے دریا میں سفر کر لیا، جہاں پر ٹیلا نظر آیا وہیں کو کشتی کو توڑ کے جلا ڈالا، اور اس نے یہ کہا کہ مجھے یہاں سے کہیں جانا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو صحیح عبادت اور صحیح تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا تم لوگ تو موبائل رکھ لو جیب میں، اب رکھ لیجیے، اس میں ہے وہی سنیے گا، بات رکھ لیجیے، اور اس کو کرنا تو دائیں بائیں چلے جائیے، سب نہ کیجیے۔ صرف موبائل کی دین ہے، 80% طلاقیں ہوتی ہیں، نہ جانے کتنے نوجوان گاڑی کے نیچے آ گئے، کتنے بیچارے چلتے چلتے دنیا سے چلے گئے۔ اب اس کو چھوڑ تو بہت ہو گیا، بہت ہو گیا۔ موبائل نے جو نقصان پہنچایا اتنا نقصان تو ناسور نے نہیں پہنچایا۔
नासूर भी थोड़ा टाइम देता है, मोबाइल ने कोई टाइम ही नहीं दिया। न जाने कितने लोग दुनिया से गुनाह की हालत में यूं ही चले गए, काम में डंडियां लगाए बराबर गाना सुनते चले गए, रास्ते में गाड़ी ने टक्कर मारा, घर वाले आके उठा ले गए, न जाने कितने उठाए गए। बड़ा नुकसान है भाई से। अरे बोलो है कि नहीं? अल्लाह नजरों की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मस्ऊला। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बेशक ये कान और आंखें और दिल की इन बातों के ताल्लुक से अल्लाह क्या पूछा जाएगा। आज नजरें कितनी खता करती है, हमारी आपकी अपनी कमी है। हमारी कोई जागीर है, प्रॉपर्टी है नहीं। वल्लाहु ला युहिब्बुल खाइनीन। अल्लाह खयानत करने वालों से मोहब्बत नहीं फरमाता, और आंखों की खयानतों को भी अल्लाह जानता। रात में गए, बिस्तर पे गए, चादर ऊपर डाल लिया, मोबाइल में जुट गए, बराबर नजारा कर रहे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर नजरों को गैर महरम पर डाला है तो आंख की जिना का गुनाह पड़ेगा। सारी रात तो इसी गुनाह में गुजर जाता है। अगर ऐसे मौत आ गई तो अल्लाह के बारगाह में जानी बनकर हाजिर हो गए, जिनाकार बनकर हाजिर हो। अल्लाह सही तौबा की तौफीक अता फरमाए और नजरों की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। बड़ी कीमती है ये नजरें जिनको बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। इन नजरों ने कितनों को देखा है, न जाने कितने नक्शे मौजूद हैं, कुरान की आयतें और उसकी सूरतें मौजूद हैं, न जाने कितने मकानात मौजूद हैं, कितना कुछ इस खजाने में मौजूद है। जब से पैदा हुए हैं उसके बाद से पैदाइश तक, बुढ़ापे तक, न जाने कितनी चीजें, मौत तक न जाने कितनी चीजें इस खजाने में महफूज है। ईमान वालों, शब रिसालत के परवानों, नौजवानों, इन आंखों की कदर करो। अरे करें भैया, इन आंखों की कदर करो, इससे पहले कि इसमें कुछ हो बिगाड़ हो, इनकी कदर कीजिए। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि आंख और कान और दिल, इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद, बेशक ये कान और आंखें और दिल, कुल्लु उलाइका काना अन्हु मस्ऊला, इनके बारे में भी पूछा जाएगा और अल्लाह की अदालत में जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह से कोई भागना चाहे, ऐनल मफर, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह से कहीं अलग भागने का कोई ठिकाना भी नहीं है, जाना होगा अल्लाह के सामने ही। तो अल्लाह सही अमल की तौफीक अता फरमाए। अरे बोलो भाई, दुनिया में जो नजरों की हिफाजत कर लेगा, मैदान क़यामत में हिसाब व किताब के बाद, जन्नत में दाखिला के बाद बार बार इरशाद बारी होगा, ए मेरे बंदों कुछ मांग लो। जन्नती जन्नत चले गए, जहन्नमी जहन्नम चले गए। अल्लाह की तरफ से बार बार तकाजा होगा, ए मेरे बंदो कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। वहां भी मोहताजगी होगी, लोग लोगों से कहेंगे क्या मांगे, आपस में बात करेंगे क्या मांगे अल्लाह से। और अल्लाह की तरफ से बार बार हुक्म होगा, तकाजा होगा कि ए बंदो तुम मांग लो। एक बात याद रखिएगा, उलमाए रब्बानीन, उलमा की तादाद तो स्टेज पर है और है। खुदावंद कुद्दूस इनकी कदर की तौफीक अता फरमाए। और जो मोबाइल पे क्या कहते हैं भैया, जिससे निकालते हैं बातें, गूगल, हाँ वही वाला, उससे मसला पूछा करते कैसे क्या करेंगे, फौरन गूगल मंगाया। अब गूगल तो रोड बताएगा, सड़क बताएगा, ट्रेन बताएगा, दीन की बात गूगल नहीं बताएगा। महा बिल्कुल बेवकूफ आदमी भी उसमें अपनी बातें डालकर इधर उधर कर देता है। अब उसको कोई अच्छी बात भी होता है, वो कहेगा भाई फला चीज का मसला अब गूगल लिए बैठा है। गूगल ने हलाक कर दिया, अब तक कुछ बचाया नहीं है, बहुत तबाही तक लोग पहुंचे, न जाने कितने मसाइल से दूर हो गए, बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तय करो गूगल का सहारा न लेकर, उसमें बर्बाद न होकर, उलमाए रब्बानीन से राब्ता करके इनसे मसाइल पूछकर उस पर अमल करेंगे। अरे करेंगे, बोलो भैया। गूगल का चक्कर न कीजिएगा, न जाने कितने लोग राह भटक गए। अब वो पूछते हैं क्या बताओ मौलाना, टोपी लगाना सुन्नत जरूरी है या नहीं।
एक साहब मुझसे कहने लगे तो मैंने कहा मुझे नहीं पता भैया। कहा कुछ बता दो। मैंने कहा कुरान मजीद से पूछो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुल्ली मस्जिद, अल्लाह ने इरशाद फरमाया हर नमाज के लिए बेहतर लिबास में जाओ। उलमा फरमाते बेहतर लिबास में टोपी भी शामिल है, इसकी तफसीर में लिखा है उलमा ने। एक बात पूछते हैं क्या करें, उसका जवाब पूछते हैं गूगल से मंगाते हैं। अब गूगल को क्या पता, खुद ही बेचारा पैदल है। अरे बोलो है कि नहीं? नौजवानों इधर देखो, तबाह तो बहुत हो चुकी अब तक गूगल के सहारे। अब गूगल का सहारा न लिए उलमा भैया दाढ़ी वाले हाफिज इधर देखो, उधर बाद में देखिएगा। अभी हमको दिखाई बहुत पड़ता है। मुफ्ती सईद साहब से बात तो मैंने कहा बुढ़ापा का, कहा कितना, मैंने कहा 53 साल में उम्र, तो कहा नहीं इतने में तो अभी तो शुरू है मामला। तो इतना न करो, दिखाई बहुत पड़ता अभी। आप दाएं बाएं देखोगे फौरन मुझे दिखाई पड़ेगा, टोकना पड़ेगा, लिहाजा पूरी तवज्जो इधर ही रखिए। तो मैं अर्ज कर रहा था, लोग मसला पूछा करते, तो मैंने बताया अगर मस्जिद का मीनार न बनाया जाए तो नमाज का सवाब पूरा मिलेगा कि कट जाएगा? कहा मीनार से मस्जिद का कोई ताल्लुक नहीं, किसी मस्जिद का मीनार न बनाया जाए नमाज का पूरा सवाब मिलेगा। लेकिन मैंने कहा मीनार न बनाई जाए तो मस्जिद की पहचान तुम बता दो। कहा तब तो पूछना ही पड़ता है गली गली, जिस मोहल्ले में जाओगे पूछोगे यहाँ मस्जिद कहाँ बनी हुई, बिल्कुल पड़ोस में है, करीब में है, तलाशते तलाशते तबीयत हरी हो जाएगी। लेकिन मस्जिद का पता रात में कौन बता देगा, अंधेरे में कौन बता देगा, बहुत सुबह कौन बता देगा? मैंने कहा मस्जिद का पता तो मीनार बताते हैं, टोपी का पता तो नमाजी का, तो नमाजी का हाल तो टोपी बताती है, और मुसलमानों का पता तो दाढ़ी बताती है। कहाँ तक आप फर्जवाजी पूछोगे? अल्लाह सही अमल की। अरे बोलो भैया, ज्यादा ये सब न पूछा करो। मुझे एक शेर याद आया कि खिलाफे पैगंबर का सेरा गुज़ीद के हरगिज़ मंजिल नखात रसीद। अल्लाह के महबूब के तरीके के खिलाफ चाहे जितना कोई कमाली बन जाए, जमाली बन जाए, चाहे जितना कुछ हो जाए, असल मंजिले मकसूद यानी जन्नत को नहीं पहुंच पाएगा। जन्नत तक की रसाई के लिए तरीका चाहिए सरवरे कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अरे बोलो भाई, तो तय करो सहारा किसका लेना है? अरे बोलो भाई, उलमा की ज़ियारत करना सवाब, मुलाकात करना सवाब, पास में बैठोगे अल्लाह मैदान क़यामत में फरमाएगा तुमसे किसी आलिम से दोस्ती या ताल्लुक था या नहीं? अंधा जवाब देगा परवरदिगार डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं था। पूछा जाएगा वास्ते से कोई ताल्लुक, किसी आलिम से किसी का ताल्लुक रहा हो, उस आदमी से तुम्हारा ताल्लुक रहा हो? बंदा बोलेगा परवरदिगार ऐसे वास्ते से तो था लेकिन डायरेक्ट नहीं था, उस वास्ते की वजह से भी अल्लाह रहमत फरमाएगा, करम फरमाएगा, माफ फरमाएगा। इनसे जुड़ो ईमान वालों, दूर दूर न भागो और हर बात में मसला पूछा करो। जब शादी ब्याह की बात आया करती उलमा को दरकिनार कर दिया करते, कहते आपकी बात मस्जिदों में चलती है, पढ़ाने में चलती है, आज निकाह वाले दिन सिर्फ निकाह तक चलेगी, बाकी हमारा खुद का मामला चलेगा। अरे बोलो है कि नहीं? अच्छा बोलो तबाही कोई बाकी रहा अभी? तय करो समय रिसालत के परवानों। एक एक बात हम उलमा से पूछेंगे। जब निकाह की बारी आए, जब पैगाम की बात आए तो पूछो किस तरह क्या किया जाए। उलमा तुमको जवाब देंगे कि 10-5 लोग 10-12 लोग ना जी माने तो 15 चले जाओ, मस्जिद में चले जाओ। मैं फतवा नहीं बयान करता, मैं सादा बयान कर रहा हूँ। मस्जिद में चले जाए, मस्जिद में असर की नमाज के बाद बेहतर है कि नमाज के बाद निकाह हो जाए। अपनी बीवी को रुखसत करके घर ले आओ, रात गुजरने के बाद कुछ लोगों को खिला दो, दावत वलीमा की सुन्नत अदा हो जाए। एक आदमी कहने लगा मौलाना सुन्नत तो ठीक है आप कहते हो अच्छी बात है, लेकिन मैं बहुत असरदार आदमी हूँ। उसने बराबर बताया मैं बहुत असरदार आदमी हूँ। मैंने कहा कितना असर है? कहा लोग मुझे बहुत जानते हैं। तो मैंने कहा अच्छा कितना? कहा मौलाना हमारे यहाँ 7-8 ट्रकें चलती हैं और बड़ा मैं मालदार आदमी, पूरे जवार के लोग जानते हैं मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। कहा पगले हो पूरे? अब गुब्बारा तो और बड़ा दिखाई पड़ता है। जब तक गुब्बारे में हवा मौजूद है लगेगा बहुत बड़ा, बड़ा हाई फाई फूला बड़ा, कुछ दिखवा नहीं करता, बिल्कुल फूला बड़ा है। जब गुब्बारे में तिनका लग जाए, कांटा टूट जाए, कहीं सुई लग जाए तो गुब्बारा लापता हो गया। चिथड़े मिलते हैं, बाकी सब लापता है।
कौन है भैया? अल्लाह की जात बाकी बाकी सब। अरे बोलो भाई कि रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया था। रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया था। बनवाई शद्दाद ने जन्नत फिर भी देख न पाया था। आज कहाँ सुल्तानी है, आज कहाँ सुल्तानी है, बाकी सिर्फ कहानी है। अल्लाह बाकी सारी दुनिया पानी है। अल्लाह बाकी सारी दुनिया पानी है। कोई माल पर या अपने शोहरत पर फूले ना, एक ही मिनट में अल्लाह ले लेता है। न जाने कितने पैदल हो गए, सुबह के वक्त अमीर थे, शाम के वक्त फकीर हो गए, न जाने कितने। अरे बोलो भैया नहीं है। अल्लाह याद रखने की तौफीक अता फरमाए। वो कहने लगा मैं बड़ा अमीर आदमी, महल्ले का मशहूर आदमी, जवान का मैं मालदार आदमी गिना जाता। दूसरे दिन पता चला उस ट्रक ने किसी बोलेरो को टक्कर मारा, 3 ऐसे ही चले गए। मुकदमा झेलते झेलते तबीयत हरी हो गई। मिला बाद में, कहा मौलाना बस दुआ करो। तो मैंने कहा हाई फाई वाली शादी कर ली तुमने बारात के साथ? कहा मौलाना बस दुआ करो। मैंने कहा क्या हुआ? और कहा मैंने 7 कर दिया, 14 ट्रक हो जाए। कहा नहीं मौलाना बड़ा बिगाड़ हुआ, बड़ी तबाही आई, 3 लोग मरे हैं हमारी गाड़ी के टक्कर से। झेलते झेलते न जाने कहाँ तक नौबत है, पूरा फटीचर दिखाई पड़ा, फटे पुराने कपड़ों में मैला कुचला जैसा कैसा। मैंने कहा याद रखो, जो अल्लाह देना जानता है वही अल्लाह लेना भी। बड़ा कौन है? बड़ा हमारा अल्लाह है। अल्लाह के पास सारी कायनात और सारे जहान में ताजदार मदीना इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस। तो हर बात किससे पूछकर भैया हर काम करेंगे? दुनिया में पूछने की जरूरत पड़ा करती। पैदाइश के बाद अजान और इकामत का मसला हुआ करता है। एक कान में अजान, दूसरी में तकबीर हुआ करती। जब ये पढ़ने के लायक हो जाए उलमा का सहारा लेना पड़ता, जब इसको पढ़ा लिखा के बड़ा कर दे। उसके बाद जरूरत पड़ती, जब निकाह की बारी आती उलमा की जरूरत पड़ा करती। जब ये मर जाए, इंतकाल कर जाए तो नमाज जनाजा में उलमा की जरूरत हो, पादोपुर्रा की जरूरत पड़ा करती। और इतने नहीं, जन्नत में जाने के बाद भी जरूरत पड़ेगी। अरे बोलो भाई, ये बात मुझे चंद मिनट में अर्ज करनी है। पापा थोड़ा सा आगे आ जाओ अपनी चप्पल के साथ, वरना चप्पल कोई कहीं उठा ले जाए मौके से दिक्कत हो जाए। बाद लोग जुमे वाले बड़ी जल्दी सलाम दे के चप्पल को पहले ध्यान रखते कौन चप्पल लेके भागना है। अच्छी बात, हर वक्त जो चप्पलें पैर में रहती है वो खुद ही पैर की नाप बताती है कि फला की चप्पल लेके तभी भूल करके अच्छी वाली भाग जाते हैं और भूल में कभी खराब वाली नहीं पहन जाते। तो बाबा घबराइएगा नहीं, अपनी चप्पलों के साथ आगे आइए। पीछे वाले इसलिए बेचारे नहीं मान रहे, कहीं ऐसा ना कुछ उठा ले जाए कोई। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। दरूद पाक पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जन्नती जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह की तरफ से तकाजा होगा, हुक्म होगा, ए मेरे बंदो कुछ मांग लो। अब जन्नत में क्या मांगे भैया? बात समझ रहे नहीं? दुनिया में मांगने की बारी आए, जहाँ शादी की बात आई, और शादी वाले दिन लड़की का बाप है, बेटा जो मांगना हो मांग लो। तो बहुत लोग मांगते मांगते बुलेट मांगते हैं। एक ने कहा बड़ी वाली बुलेट जो 2.5-3 लाख के, मैंने कहा लब पूरे। अब मांगा तो लड़की के बाप से मांगा, जिसने 22 साल 20 साल परवरिश के बाद खुद नहीं खाया, बेटी को खिलाया, खुद नहीं पहना, एक जोड़े पे 2 ईदें कर ली है, और तुम्हारी बेटी अपनी बेटी को खिलाया पिलाया पहनाया कपड़ा, और उसके बाद तुम गाड़ी मांगते हो, शर्म नहीं आए? जब इतना ही था तो कोई कमजोर साहब वो ले लेते, वो क्या कहते भैया, जिसमें वो डालते हैं कटोरा, थैला ना बड़ा वाला महिला वाला। कोई भिखारी जा रहा, चुपके से मांग लो, उसे थैला उसी का कटोरा में बोलो, गली गली चले जाओ, कोई नहीं बोलेगा। इससे ज्यादा बुरा कौन है भैया? वो जो लड़की के बाप से मांगता है। अगर वो कह दे साहब जो मांगना हो मांग लो, आज खुशी वाला दिन, तो न जाने क्या क्या मांगते हैं। ऐसे मांगने वालों पर लानत हो। क्या हो कि जो चाहे मांग खुदा से, मगर खुदा के लिए, जो चाहे मांग खुदा से, मगर खुदा के लिए,
से दिल की जरूरत है हर दुआ के लिए, खुलूस से दिल की जरूरत है हर दुआ के लिए। तो बोलो किससे मांगना भैया? पहले तौबा कर लो कि हम लड़की के बाप से पूछे, यानी ससुर साहब से फुसर साहब से कोई तकाजा, और उनके भाइयों को ना गांठिएगा कि भाई साहब। बहुत लोग बहुत चकड़ होते हैं, उनसे नहीं कहेंगे, बीवी के भाई से कहेंगे कि भाई साहब हम बड़ा गोल मोल कर देते, वही कम से कम कोई मेहरबानी करते हैं। गोलुआ बहुत बनते हैं बाद में, बहुत चुपके से, समझे नहीं? अल्लाह की तरफ से तकाजा होगा, ए मेरे बंदो कुछ मांग लो। जन्नती कहेंगे क्या चीज मांगे? हर चीज तो है। अल्लाह ने पहले से वादा फरमाया, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जो कुछ दिल में आएगा वो सारा का सारा वहां मौजूद मिलेगा। आदमी को बहुत ज्यादा ख्वाहिश होती कि उसको बुढ़ापा महसूस न हो। क्या नाम भैया? हाँ इब्राहिम साहब, आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। चलिए भाई, चलिए हमारे साथ क्या। अच्छा, अरे बोलो भाई, आदमी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? चालाक बहुत हो, बोलोगे बहुत बात हो, और होशियार बहुत हुआ। आदमी सोचेगा हमारी उम्र लगेगी बिल्कुल जवान है। एक आदमी हमारे यहाँ लखनऊ में महल्ले की मस्जिद में आता, नाम ले लेंगे दिक्कत हो जाएगी, उसकी उम्र 63-64 साल की हो रही, हमेशा वो काले करवाए रहता है। वो क्या कहते हैं तो लगाते हैं, हाँ बिल्कुल काला। तो मैंने कहा ऐसा क्यों करते हो? तो कहा जायज है। तो मैंने पूछा कब? कहा बीवी कहे तब। मैंने कहा पूरा बौड़ा मैं तुम्हारी उम्र 63-64 साल की है, और पीछे पीछे तुम्हारी बीवी भी 55 साल और 60 के दरमियान हो गई होगी, अब कौन सी बात है? कहा इजाजत है। मैंने कहा ये इजाजत कब्रिस्तान तक चलेगी। अल्लाह अकबर। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, एक आदमी का इंतकाल होने लगा, उसने लोगों से बताया, जब मुझे नहलाने लगा, जब मुझे कफन पहना देना, मेरी दाढ़ी में चूना कोई चीज सफेद लगा देना, जिससे लगे कि ये दाढ़ी सफेद है। तो चुनांचे उसके हुक्म के मुताबिक, वसीयत के मुताबिक उसकी दाढ़ी को सफेद किया गया, और वो बंदा कब्र में उतारा गया। फरिश्ता आया, फरिश्ते ने कहा मरहबा, जोर से कहा। बंदा बोला जवाब सख्त है। कहा क्या मतलब? कहा मुझे मामला उल्टा नजर आता है। कहा तुम्हें उल्टा नजर आता है? उधर से पूछा जाएगा, मन रब का तेरा रब कौन है? मन दीन का तेरा दीन क्या? मन नबी का तेरा नबी कौन? यहाँ तक फरमाया कि इस कब्र से रोज़े अक़दस तक दिखाई पड़ता है, और कब्र अतहर में ताजदार मदीना इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर दिखाई पड़ेगा। अच्छे अमान है तो कह दो कि हमारे नबी इधर उधर टहलते रहे, दाएं बाएं इनका उनका हीरो जीरो पीरो फलाने ढकाने, आदमी भूल जाएगा, कुटाई वहीं से शुरू हो जाएगी। अल्लाह सही ताल्लुक जोड़ने की, जो सिद्क़ दिल से नबी का गुलाम हो जाए, जो सिद्क़ दिल से नबी का गुलाम हो जाए, तो उस पे आतिशे दोज़ख हराम हो जाए, तो उस पे आतिशे दोज़ख हराम हो जाए। फरिश्ते ने जोर से पूछा मरहबा, कहा मामला उल्टा दिख रहा है। बहुत गौर से सुनिएगा जरा, 1 मिनट की बात है। कहा मामला उल्टा नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा मामला। कहा नहीं, मैंने ताजदार मदीना इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मुझ तक पहुंचाई गई कि सफेद बाल वालों पर अल्लाह को तरस आता रहमत। किस पर भैया? हाँ, रंगो न बनी होगा। कहा सफेद बाल वालों पर अल्लाह को तरस आया करता, रहम आया करता। अल्लाह अज़ाब देना चाहता, सफेद बालों की वजह से अल्लाह को रहम आता। अल्लाह को गैरत आती, मेरा बंदा बूढ़ा हो चुका, बाल पकड़ क्या इसको अज़ाब। फरिश्ता कहेगा तुम्हारे बाल काले, तुम्हारे बाल सफेद वाले नहीं है, तो चूना से सफेद किए गए। कहा मैं नहीं जानता हूँ।
من تشبہ بقوم فہو من، آقا کی بات پہنچی ہے جو جس قوم کی مشابہت اختیار جس جیسا بنائے اسی میں سے اس کا شمار کیا جائے گا۔ سفید تو نہیں تھے، سفید کیے گئے، آواز آئی کہ نہیں میرے بندے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، بالوں کو سفید کر کے آیا ہے۔ اب جس کو دیکھو وہی گھوٹے پڑا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ صاحب کی اجازت دی گئی، تو میں نے کہا کب کب کہا بیوی کہے، میں نے کہا پورے مکہ ہو بیوی کب کہے؟ جب بیوی کی عمر نہیں ہو تم بالکل ادھارے ہو چکے ہو تب اس کو کالا کر کے نہیں نے۔ تو ہم نے کہا تمہاری آج شادی؟ کہا شادی کو تو 35 سال ہو۔ میں نے کہا لبلا بابو نے 35 سال گزر کے اب تک وہ توبہ ہے اللہ، پورا گانٹھے پڑے۔ میں نے کہا دوبارہ اجازت کا اور اجازت۔ میں نے کہا جب مجاہد کوئی راہ خدا میں جائے تاکہ دشمن سمجھے بھی جوان ہے اس وقت اجازت ہے، جب دیکھو تبے تنگے گھوم رہے ہیں۔ میں نے کہا اس پر نہیں، اس پر تو لعنت پکی ہے بالکل۔ ارے بولو بھائی، تو آدمی کے دل میں رہا کرتا کہ ہمیشہ میری جوانی محسوس اگر لگے کہ بالکل آجے بالکل 30 سال کا جوان۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ لیکن دنیا میں آدمی کتنے گھوٹے معاملات۔ ارے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ہفتے میں 5 بار دام لگاتا ہوں۔ میں نے کہا ایسا کیوں کرتے ہو؟ تاکہ بالکل کہا کہ بالکل لگے کہ ابھی ہم نہیں سمجھے آپ، لگے کہ بالکل اور پورا پنکلار لگتا ہے۔ دیکھیں نبی کی سنت ہو چہرے پر اس کے مہا کالا کولا آدمی ہو، لیکن اللہ کے حبیب کی سنت ہو تو چہرے میں رونق ہوتی۔ ارے بولو ہوتی نہیں ہوتی؟ نہ جانے کتنے ہوں گے اس میں چہرے پہ رونق ہو تو بابا بیٹھے پیچھے ان سے پوچھ لو چہرے پہ رونق داڑھی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آدمی سوچتا ہے بڑھاپا محسوس ہو جنت میں، تو آدمی کی عمر ہوگی 32 سال کا جوان محسوس ہوگا، ہمیشہ اسی حال میں رہے گا۔ کروڑ سال جنت میں رہے گا، 32 سال کا ہی جوان محسوس ہوتا رہے گا۔ نہ عمر جوانی آگے کی طرف بڑھے گی نہ پیچھے کی طرف، ایک حد پر قائم رہے گا۔ یہ بات صرف جنت میں ملے گا۔ اب دنیا میں چاہے جتنا جگاڑ لگاتے عمر 40 برس کی ہو گئی، گھونٹتے عمر 50 برس کی ہو گئی۔ ایک آدمی تقریباً 65 سال کا تھا، وہ بھی اس کی کھال چمڑا لٹک رہا تھا، نائی بیچارہ کھینچ کے پریشان تھا۔ تو میں نے کہا ایک نائی ہمارے ملو ہے، میں نے کہا بھائی ذرا رحم کھاؤ، چمڑا کھینچ کے سیدھا کرو گے اس کا؟ تو کہا کہ ایسے شوقین آدمی روزانہ یہی کرواتے ہیں کر کے بالکل لگے نا۔ تو میں نے کہا وہ منہ پورا چموٹی ہوا جانا۔ کہا یہ ایسے ہے، نہیں سمجھا؟ اللہ اکبر، چہرے پر جھٹیاں آئی، چہرے کی رنگت بدلنے لگی، کھال چمڑا کھینچ گیا۔ لیکن اگر اللہ کے حبیب کی سنت ہے چہرے پر تو اس کو ڈھکے ہوئے ہے، بند کیے ہوئے، اور چہرہ بارونق معلوم ہوگا۔ ارے بولو ہوگا نہیں؟ اس سے بحث نہیں اس کر رہا تھا۔ اللہ کیا پوچھا جائے گا جنت میں؟ اے میرے بندوں کچھ مانگ لو۔ تو جنتی کہیں گے ہم کیا چیز مانگے؟ اب یہ خود سے نہیں سوچ پائیں گے، جتنا دل میں آیا ساری کی ساری چیزیں وہاں موجود ہوں گی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا متقین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ جنتی مسیری پہ ٹیک لگا کے بیٹھ جائے گا۔ سورۃ دہر میں اللہ نے ارشاد فرمایا اب جنتی بیٹھا ہوا مسیری کے اوپر سونے کا ڈنڈا ہاتھ میں ہوگا، اور سامنے اس کو پیڑ دکھائی پڑے گا۔ پیڑ بھی وہ سونے چاندی کے ہوں گے، ان کا تنا سونے چاندی کا، ان کی ڈالیں سونے چاندی کی، ان کی جڑیں سونے چاندی کی۔ سونے چاندی سے کم کی کوئی باتیں جنت میں نہیں۔ ارے بولو بھائی، یہ سارا کا سارا نظر آئے گا، جنتی دیکھے گا۔ جنتی کے دل میں آئے گا میں ہونوں سے ان پھلوں کو نہیں توڑواؤں گا۔ سیب کا پیڑ لگا ہوا، اور اتنے کمال، 1 منٹ کی بات ہے حضرات علماء اکرام کی موجودگی میں عرض کر دوں کہ جنت میں آدمی ایک لقمہ کھائے گا، کتنے بھیا؟ ایک لقمہ کھائے گا، اس میں 70 ذائقے ہوں گے۔ دوسرا لقمہ کھائے گا، دوسرے 70 الگ کے ذائقے۔ تیسرا لقمہ کھائے گا، تیسرے 70 الگ کے ذائقے۔ ہر لقمے میں 70 الگ کے مختلف ذائقے موجود ہوں گے۔ جنت تو وہ ہے شمع رسالت کے پروانوں، اللہ اس کی تیاری کی اور اس کا یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
बात लोग कहते हैं क्या किसी ने देखा है? कितना देख पाते हैं हम, कितनी दिखाई पड़ती है बात चीजें, कितनी आंखें काम करती है। 300 मीटर तो देख नहीं पाते, मोबाइल देखते देखते तो 200 मीटर तक देखना मुश्किल हो रहा है, दूभर हो रहा है, वहां तक कोई देख लेगा। जन्नत तो देखा है ताजदार मदीना इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शेर इमाम इब्राहिम साहब, ये उम्मत को रोज़े महशर, उम्मत को रोज़े महशर इनाम जो मिलेगा, उम्मत को रोज़े महशर इनाम जो मिलेगा, मेराज में वो सब कुछ, मेराज में वो सब कुछ सरकार देख आए, बेशक बेशक मेराज में वो सब कुछ। अभी कुछ देखने बाकी रहा भैया, कितना देख पाते मुझे, देखो हमको तो दूर अंदेशी नहीं दिखाई पड़े, क्या बताएं भाई। ये सारा का सारा मौजूद होगा। और जन्नत के बाग के बीचों बीच में नहरें जारी हैं। क्या चीज भैया? नहरें जारी हैं। कौसर और तस्नीम की नहरें, बेहतरीन नहरें जारी, जिसमें दूध की नहर अलग हो जाएगी, शहद की भी नहर है, दूध और शहद की, और शराबन तहूरा की नहर। अल्लाह इस नापाक दुनिया से बचा ले। जन्नत में जब कोई शराबन तहूरा पिएगा, उसका जहन दिलो दिमाग खुल जाएगा, रोशन हो जाएगा। जब यहाँ छोड़ोगे तब वहाँ मिलेगा, जब यहाँ छूटेगी ये नापाक चीज, तब वहाँ पाक चीज मिलेगी। अल्लाह हम तमाम ईमान वालों को तैयारी की तौफीक अता फरमाए। जन्नत के चारों तरफ, उस नहर के चारों तरफ बच्चे फैले हुए हैं, जो जैसे कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया, लुअलुअम मंसूरा, जैसे सफेद मोतियां बिखेर दी जाए। सफेद मोतियों को जब बिखेरा जाए, छोड़ दिया जाए, बड़ा खुशनुमा मंजर होता है। ये सारी चीजें वहां मौजूद होंगी। जन्नती मसेरी पर टेक लगाए हुए बैठा हुआ, मुत्तकीन फीहा अलल अराइक, टेक लगा के बैठा हुआ, सोने का डंडा हाथ में होगा। अब जन्नती के दिल में आएगा, न तो हम डंडा ही से फल को तोड़ेंगे, ना इस फल को गिलमान से तोड़वाएंगे, और न ही हूरों का सहारा लेंगे तोड़ने के लिए। बहुत लंबा लंबा भी होगा, और उसकी डालें झुकी होंगी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वदानियतन अलैहिम ज़िलालुहा वज़ुल्लिलत कुतूफुहा तज़लीला, जिसकी टहनियाँ, जिसकी डालें लचकी हुई होंगी, चाहो तो हाथ से तोड़ लो, जितना चाहो उतना करीब आ जाए। जन्नती सोचेगा, ना मैं अपने डंडे से तोड़ूंगा, ना डंडा फेंक कर तोड़ूंगा, ना हूरों से तोड़वाऊंगा, ना गिलमान से। 80-80 हजार गिलमान अल्लाह अता फरमाएगा, जो छोटे छोटे बच्चे होंगे। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लुअलुअम मंसूरा, जैसे सफेद मोतियां हो बिखेर दी जाए, कितना खुशनुमा मंजर होगा। जन्नती के घर नहीं, ना मैं हूरों से तोड़वाऊंगा, ना गिलमान से, ना अपने हाथ से तोड़ूंगा। और अल्लाह ने पहले से वादा कर रखा है, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन, जो तुम्हारे जी में आए सब वहाँ मौजूद मिलेगा। 1 मिनट के बाद दूसरा मौजूद से ताल्लुक रखती है। अल्लाह हमारी माँ बहनों को समझ अता फरमाए। कपड़ों की बड़ी भूखी रहती हैं, वो या भी 50,000 रुपया जेब में रख करके मार्केट ले जाए, बाजार ले जाए, और इनसे कह दे जो चाहो जितना चाहो कपड़ा तुम्हारे लिए खरीद कर दे दूंगा, तो 50,000 अलग से रख के ले जाओ, कपड़ा पैसा घटवे करेगा। अरे बोलो भाई, कोई कहे कि मैंने सब कुछ पूरा कर दिया, उसकी मर्जी और मंशा के मुताबिक समझा, पूरा झूठा आदमी है। और वहीं सर्राफे दुकान पे चले जाओ, जहां जेवरात बिकते हुए सोने चांदी के, तो समझ जाओ कि घरों बेचो तभी पूरा। अगर कोई 2 किलो का थैला टंगवा दे, मतलब थैला पकड़े लेते, चलो हमारे हाथ में दूसरा सामान, तो कहते बहुत वजन है, बड़ा बोझल वैसे सामान, बड़ा वजन है। और अगर 5 किलो का सोने का जेवर गले में डाल दो तो बड़ा हल्का लगेगा। बहुत पत्ती होती है जेवर की, बड़ी
کپڑوں کی اور زیورات کی بڑی شوقین ہوتی ہیں. اللہ ہماری ماں بہنوں پہ رحم فرمائے. دنیا میں زیادہ خواہش نہ کرو, سال میں زیادہ سے زیادہ 2 جوڑے لیا کرو, حیثیت کم ہے تو 1 جوڑا لیا کرو. زیادہ جوڑے اوڑے مت لیا کرو, زیادہ جوڑے نہ لیا کرو. اللہ وہاں جوڑا عطا فرمائے گا. جوڑا کہاں ملے گا بھیا؟ ارے بولو ذرا. جوڑا ہماری ماں بہنوں کو وہاں ملے گا. 1 جوڑا پہنے گی اس میں 70 ڈیزائنیں موجود ہوں گی. اسی کے اوپر دوسرا جوڑا پہنے گی اس میں 70 ڈیزائنیں موجود ہوں گی. اس دوسرے جوڑے پر تیسرا جوڑا پہنے گی اس میں 70 ڈیزائنیں موجود ہوں گی. اور اس تیسرے پر چوتھا جوڑا پہن لیں گی, 70 الگ الگ کی ڈیزائنیں موجود ہوں گی. فرمایا کہ 70 جوڑے تلا اوپر نیچے اوپر پہننے کے باوجود بھی رگوں سے دوڑتا ہوا اوپر سے نظر آئے گا. اللہ ایسا جوڑا عطا فرمائے گا. اللہ ہماری ماں بہنوں کو دنیا میں فضول خرچی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جب شادی بیاہ میں جایا کرتی کپڑوں کا مقابلہ کیا کرتی, تو جب بیٹھتی تو کپڑے کا گھپلا ضرور ہوگا. زیور تو کان کھلا ہی کھلا رہے گا تاکہ کانوں بنا تو تاکہ زیور کان و گلے والا سب دکھائے. توبہ ہے اللہ, اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور کپڑوں کا مقابلہ ہوا کرتا ہے. اسی لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, محفلوں میں جانے سے روکو ورنہ ان میں دکھاوے کی عادت ہوتی ہے, بعد میں جھیلو گیا. 1 دن کی شادی 1 مہینہ کی لڑائی پکی ہے. جب شادی میں بھیج دو گے کہاں دیکھیں گے ان کا جوڑا اتنا قیمتی فلانے اتنا زیور پہن کے آئے, دھماکی اتنا زیور پہن کے آئے. سمجھا 1 مہینے کی لڑائی بالکل کم سے کم منہ کھلوا معاملہ تو چلبے کرے گا. ذرا سا چائے دینا, چائے کے لائق ہو تم. زیور ڈالا ہے جو مانگے وہ اس میں لفڑا دکھائی پڑے گا. اسی لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد سے بڑے تجربے کرتے حضرت نے منع فرمایا. ان کی عادت ہوا کرتی کپڑا لے جائیں گے دکھانے کی عادت ہوا کرتی. یاد رکھو کپڑا تن ڈھکنے کے لیے ہوتا ہے, ریا اور دکھاوے کے لیے نہیں ہوتا. اگر کوئی کبر اور بڑائی کا کپڑا پہنے گا اسے آگ کا کپڑا پہننا پڑے گا. اللہ تواضع انکساری عطا فرمائے, دکھاوے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ماں بہنیں یاد رکھیں دنیا میں کم سے کم پر کام چلا لیں. صرف تقریر کی عادت نہیں جو ایسے پھینکے ہو جو چاہو اپنا معاملہ ویسے رہے. نہیں, میں نے گھر میں بتایا اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ نئے 2 ہی جوڑے دکھائی پڑیں گے اور پرانے دھرانے کبھی نیا جوڑا ہر سال ہر مہینے کی عادت نہیں ہے. اللہ کا بڑا احسان ہے. اور میں نے کہا کہ دکانیں اس کا تو حساب دینا پڑے گا, خود ہی تیار ہے. میں نے پوچھا بنوا لو نا, کہا میں نے اس میں ریا زیادہ دکھاوا ہے, نئے جوڑے کے لیے کرے صرف سال میں 1 یا 2 جوڑے بس, اس سے زیادہ نہیں. اور کبھی کبھی ایسا 2 عیدیں گزر گئی. میں نے پوچھا کپڑے وہی, تو کہا کیا ہونا دکھانا آپ کو جب پسند ہے ہمیں نئے جوڑ کیا کرو. لما تقولون ما لا تفعلون. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہیں بھی عمل بھی کریں تو ماں بہنوں سے گزارش ہے وہاں ایسے جوڑے دیے جائیں گے. 1 جوڑا, دوسرا جوڑا, تیسرا, چوتھا, 5واں, 6واں, 7واں تلا پر جوڑا پہنتی ہی چلی جائیں گی. اور جو جوڑے پہنے میں پلٹ کے دھل کے وہی نہیں, اللہ کے روزانہ نعمتیں نئی دی جائیں گی. کبھی گھٹ نہیں کرے گا, وہاں گھٹے گا نہیں. ارے بولو بھائی, وہاں گھٹے گا نہیں. اللہ اس کا یقین نصیب فرمائے. دعا کر رہا تھا کہا جائے گا اے میرے بندوں کچھ مانگ لو. بندے کہیں گے سب کچھ, تم کیا چیز مانگے اللہ سے. وہاں شبیر صاحب ٹائموں دیکھے رہیے گا ذرا سا. نہیں ہے نہیں, 12:30 4 منٹ کم. بھائی ذرا سا توجہ سنیے, زیادہ ٹائم ہے نہیں, تھوڑی دیر میں بہت تھک چکا ہوں اور بوڑھا بھی ہو رہا ہوں. لیکن اب نہ مانے مولانا صحیح صاحب مولانا شبیر صاحب کو میں سکھا رہا. ارے یہ حضرات والد صاحب سے تعلق رکھتے تھے تو اس گنہگار کی بھی توجہ رکھتے. اللہ ان کو قبول فرمائے, تادیر سایہ قائم فرمائے. تو عرض کر رہا تھا کہ جنتیوں سے کہا جائے گا اے میرے بندوں کچھ مانگ لو. ارے بولو بھائی, ضرورت یہاں بھی اور ضرورت چند منٹ کی بات ہے. ارے کہہ دوں بھائی نہ کہوں. سب پیچھے والے نہیں بول رہے ہیں, ان کی آواز یہاں تک نہیں پہنچی. ایک صاحب نے ہاتھ اٹھایا ہے اور ایک چچا میاں لال رومال اوڑھے بیٹھے ہوئے تو کچھ بول ہی نہیں رہے.
हाँ, वो तो हमसे भी ज्यादा हजरत मालूम होता, माशाल्लाह उम्र भी। कहा जाएगा ए मेरे बंदो कुछ मांग लो। अब जन्नती कहेंगे क्या चीज मांगे, वो आपस में परेशान हो जाएंगे। गौर से सुनिएगा, उलमा से राब्ता रखिएगा। ये उलमा दीन के बारे से हमारे तुम्हारे रहबर है, अगर इनका साथ छोड़ोगे तो गुमराही में कोई कसर बाकी है ही नहीं, रास्ता भटक जाओगे। बार बार कहा जाएगा ए मेरे बंदो कुछ मांग लो। अब लोग जाएंगे उलमा के पास से, आलिम दुनिया में तुम रहबरी करते थे, निकाह की बारी आती थी आप हुआ करते थे, जनाजे में आप हुआ करते थे, हर मौके पर आप हुआ करते थे। आज अल्लाह की तरफ से बार बार हुक्म हो रहा है, तकाजा हो रहा है, ए मेरे बंदो मांग लो। अब हम अल्लाह से क्या चीज मांगे, सब कुछ तो है यहाँ। अरे बोलो भैया, इसको रख लीजिए, भाई साहब को छुट्टी दे दीजिए। ठीक है भाई, सब कबूल है भाई सब कबूल। आप कुर्सी लेके बैठ गए, बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी बात है। कम से कम बेचारे लाए तो नहीं, बहुत ठीक दरूद पाक पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तोहफा भी बड़ा खतरनाक है जो आया हुआ है, जो तोहफे में बड़ा दम है। अल्लाह हम ईमान वालों को सही अमल की तौफीक अता फरमाए। बार बार कहा जाएगा ए मेरे बंदो कुछ मांग लो। अब जन्नती जाएंगे उलमा के पास से, आलिमों दुनिया में तुम रहबरी करते थे, रास्ता बताते थे, आज अल्लाह की तरफ से बार बार हुक्म हो रहा है मेरे बंदो कुछ मांग लो। अब यहाँ हम कौन सी चीज मांग ले, सब तो है। अरे बोलो भाई, ये उलमा जवाब देंगे ए मेरे ए अल्लाह के बंदो तुम मांग लो। परवरदिगार आपने सब कुछ अता फरमाया, जन्नत जैसी कीमती चीज अता फरमाई, सारी चीजें अता फरमा दी। परवरदिगार तेरा दीदार बाकी रहा, तेरे लिए सारी जिंदगी गुजार दी है। नमाज में खड़े हो जाते थे, नियत बांध लेते थे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। तेरे सामने हाथ बांध कर खड़े होते थे, तेरी तारीफ किया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन। तुझको रहमान और रहीम कहते थे, सारे आलम का रब कहा करते थे। परवरदिगार सब कुछ था, लेकिन तेरा दीदार अभी नहीं हुआ। तेरा दीदार, परवरदिगार अपना दीदार अता फरमाते, इंतजाम हो जाएगा। जन्नत की सभी मंजिल में सबको जमा कर लिया जाएगा। जिस मैदान को मैदान मजीद कहा करते, एक जन्नती, दूसरी चीज, तीसरी, चौथी, पांचवी, अल्लाह ने 100 मंजिला जन्नतें बनाई। कितनी जन्नत भैया? अल्लाह ने 100 मंजिला जन्नतें बनाई। 99 में जन्नतें नीचे, सभी मंजिल की जन्नत। इतना बड़ा मैदान, इतना बड़ा मैदान। अल्लाह के बहुत बड़े मुकर्रम फरिश्ता हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फरमाते 1000 बरस पूरा मैदान टहलने के बाद में टहल न सका। इतना बड़ा मैदान, उस मैदान के अंदर अल्लाह तमाम अपने बंदों को जमा फरमाएगा। अल्लाह हमें इसका यकीन और उसकी तौफीक अता फरमाए। उस जन्नत में तमाम जन्नती जमा हो जाएंगे। नबियों के लिए नूर के मिंबर बिछे भी होंगे, उलमा के लिए कुर्सियां होंगी, गालीचे और कालीने, सारी की सारी चीजें सफेद ही सफेद होंगी। तमाम लोग जमा हो जाएंगे। अब जब जन्नती जमा हो गए, हुक्म हो जाएगा ए दाऊद तुम मुनाजा सुना दो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज, अल्लाहु अकबर। चिड़ियां भी फिजाओं में रुकर जिनकी आवाज पे मस्त हो जाया करती, समंदर की मछलियां भी किनारे आके आवाज पे मस्त हो जाया करती, फाड़ खाने वाले जानवर भी आके आवाज पे गिरगिटा और मस्त हो जाया करते। ऐसी आवाज थी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। अरे बोलो भाई, अब तो आवाज वहां भोंपू होती है, लोग म्यूजिक का सहारा लेकर लगता बिल्कुल कोयल के घर से आदमी आया हुआ। अरे बोलो है कि नहीं? हम बड़ी मीठी आवाज बनाते, पूरे मिट्ठू बने घूमते हैं और अलग से बात करने लग रहा है कि फटाफट साकर बांधे घूम रहे हैं। बनाते खूब है म्यूजिक का सहारा। उसमें याद रखो, नाक में भी म्यूजिक का सहारा लेना अच्छी बात नहीं, कराहियत से खाली वो भी नहीं। कराहियत से माँ से मीठा बोल बोलेंगे, चाहे एक बात को 10 बार पूछेंगे, कभी तेज आवाज में जवाब देंगे ना, बहुत मीठी आवाज में जवाब देना। क्यों? जब एक ही बात को तुमने 20 बार पूछा, एक कोई कौवा कबूतर बैठा हुआ का आपको ये क्या चीजें, बाप ने कबूतर बता, 10-20 बार बच्चे पूछते हैं। बाप और माँ हर बार खुशी के साथ मुस्कुरा कर जवाब देते हैं,
बेटा ये कबूतर बैठा है, बेटा ये कबूतर है। 20 बार पूछने पर भी कभी नाराज होकर माँ बाप ने जवाब, 3 बार में नाराज हो गए, भूल गए, तो कुछ सुनाई नहीं पड़ता कि पूछते हो बार बार, अमाल बेकार हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया है उनसे नरम बात करो। कैसे भैया? माँ बाप से नरम बात करो, अल्लाह का हुक्म है। तो अर्ज कर रहा था, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की आवाज पे जन्नती मस्त हो जाएंगे, हुक्म हो जाएगा ए मेरे महबूब आप भी खामोश हो जाओ। अब इस मौजू की आखिरी बात, अब हुक्म हो जाएगा एक जन्नत का दारोगा रिजवान तजल्लियात के पर्दों को उठा दे। उलमा का सहारा वहां भी, अरे बोलो भाई, तजल्लियात के पर्दों को उठाते, पर्दे उठना शुरू हो जाएंगे। अब अल्लाह का दीदार होगा, अल्लाह खुद ही अपना कलाम सुनाएगा, सारे पर्दे तजल्लियात टूटते चले जाएंगे। अल्लाह की तजल्लियात के हजरत मौलाना हकीमुल इस्लाम कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अल्लाह की तजल्लियात के 70,000 पर्दे। कितने भैया? 70,000 पर्दे। हुक्म हो जाएगा ए जन्नत का दारोगा रिजवान तजल्लियात के पर्दों को उठा दे। वो पर्दे उठना शुरू हो जाएंगे। अब लोग अल्लाह का दीदार करेंगे, दीदार करते करते मस्त हो जाएंगे, कोई हद न होगी, कोई इंतहा न होगी, बहुत ज्यादा मस्त हो जाएंगे। अब जन्नत की हूरें रोएंगी, परवरदिगार हमारे शौहर दरमियान से गए थे, अब तक वापस नहीं आए, उन्हें क्या हुआ? उन हूरों की रोने की बुनियाद पर इरशाद बारी होगा ए जन्नत का दारोगा रिजवान तजल्लियात के पर्दों को अब गिरा दे। बहुत और से सुनिएगा, तजल्लियात के पर्दे गिरना शुरू हो जाएंगे। अब जन्नती बेचैन और बेकरार होते जाएंगे, तड़पने लगेंगे, परवरदिगार बहुत थोड़ी देर का दीदार हुआ, हमारी तृष्णगी बाकी रही, प्यास बाकी रही, चाहत बाकी रह गई। आवाज आएगी मेरे बंधु जरा बताओ कितनी मुद्दत का दीदार हुआ होगा? जन्नती अंदाजे के एतबार से जवाब देंगे 1-1.5 दिन या आधे दिन का ही दीदार हुआ होगा। आवाज आएगी नहीं ए मेरे बंधु 8 लाख साल हो गए तुम दीदार ही करते रहे। जब उस दिन लोग अल्लाह का दीदार करेंगे, अल्लाह को देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। 8 लाख साल तक गुजरने के बाद भी जन्नती महसूस करेंगे 1-1.5 दिन या आधे दिन का ही दीदार हुआ होगा। दुनिया की गंदगियों से नजर की हिफाजत कर लो ताकि अल्लाह जन्नत में अपना दीदार अता फरमाए। एक शेर याद आया माशाअल्लाह साहब कि है जहां में कितने हंसी तो है जहां में कितने हंसी तो है, मगर आज है तो वो कल नहीं है। जहां में कितने हंसी तो है जहां में कितने हंसी तो है, मगर आज है तो वो कल नहीं। परवरदिगार तू वो हुस्न है के जिसे कभी, तू वो हुस्न है के जिसे कभी न उफूल है न सवाल है। तू वो हुस्न है के जिसे कभी, हजरत बड़ा कुछ हो जाता है बीच में कि मेरी जिंदगी तेरी बंदगी, परवरदिगार मेरी जिंदगी तेरी बंदगी, तेरी बंदगी मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी तेरी बंदगी, तेरी बंदगी मेरी जिंदगी। वो जो ग़फ़लतों में गुजर गई, परवरदिगार वो जो ग़फ़लतों में गुजर गई। मेरी जान तन पे वबाल है, वो जो ग़फ़लतों में गुजर गई। अरे आप हजरत ही नाम दे रहे हैं तब तो। वो जो ग़फ़लतों में गुजर गई,
तय करो भाई, उलमा को रहबर यहाँ भी बनाओ, ये वहाँ भी रहबरी करेंगे। अगर यहाँ साथ छोड़ोगे, पीछे मुड़ोगे तो वहाँ दुश्वारी पेश आएगी। हर वक्त जरूरत पड़ा करती है। अल्लाह सही रब्त और सही ताल्लुक जोड़ने की तौफीक अता फरमाए। भैया सीटी वाले जरा सीटी कम करें तो ना, पुलिस लाइन से भी ज्यादा यहाँ सीटी सुनाई पड़ती है। भैया सीटी कम करो, बगैर सीटी काम ले लो। हाँ, रेलवे वाले गार्ड तो बजाते रहते हैं, यहाँ तो लग रहा है कि सैकड़ों रेलें चल रही हैं। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। 5 मिनट और बैठिए बस भैया, चुपके चुपके झुके झुके न भागो, बैठो आराम से 5 मिनट। तो मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा तिलावत की थी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अभी इतनी देर का प्रोग्राम हुआ जब से शुरू हुआ है, और आप सबको पता है हुफ़ाज़ के सरों पर ये दस्तार आई है, बड़ी नेमत है। लेकिन याद रखो, अब जिसकी उम्र ज्यादा हो गई नहीं कर पा रहा है, साहिबे कुरान बन जाओ, अल्लाह तभी बुलंद मकाम अता फरमाए। हाफिज़े कुरान नहीं कर रहा हूँ, साहिबे कुरान। साहिबे कुरान कौन है? जो रोजाना तिलावत करता रहे, कुरान के कहे हुए पर अमल करता रहे, और जिससे कुरान ने रोका उससे रुकता रहे, उसको अल्लाह बुलंद मकाम अता फरमाए। साहिबे कुरान तो सबके लिए आसान है। अरे बोलो है कि नहीं? साहिब कुरान रोजाना कुरान की तिलावत करे, कुरान से लगाव रखे, कुरान ही को अपना रहबर माने, रोजाना तिलावत करे, कुरान के कहे हुए पर अमल करे, जिससे रोका उससे रुकता चला जाए, उसको साहिब कुरान कहते हैं। अल्लाह बेहतर मकाम अता फरमाएगा। कुरान ने किससे रोका? एक दो बात नहीं, एक ही मिसाल में अर्ज किया करता हूँ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात। अल्लाह सूद से माल घटाता है, सदका से माल बढ़ाती है। अल्लाह की बात है, हमको समझ में नहीं आएगी, लेकिन अल्लाह जो बोले वही हक है कि कौनैन के रुश्द व हिदायत का सामान न बदला जाएगा। कौनैन के रुश्द व हिदायत का सामान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। चाहे बोनस नाम रखें, चाहे कुछ नाम रखें, नाम कुछ भी रख ले, नाम बदलने वाले बदलते रहते हैं, लेकिन अल्लाह के कुरान का हुक्म एक ही चलेगा। अल्लाह उसको मानने की तौफीक अता फरमाए। अरे बोलो मानेंगे इंशाअल्लाह। तो हुफ़ाज़ के सरों पर ये दस्तार आई, कपड़ा तो 40-50 रुपया मीटर का था, लेकिन निस्बत जो लगी है वो निस्बत बहुत बड़ी है। अरे बोलो भाई, जो निस्बत लग गई है ना, वो निस्बत इतनी बड़ी है कि एक ईंटा तो हमारे घर में लगता है, एक ईंटा मस्जिद की दीवार से लगता है, फर्क कितना बड़ा हो जाएगा, फर्क हो जाएगा। तो निस्बत बहुत बड़ी है। खुदा उनके खुदूस खुद इन हुफ़ाज़ को अपनी कदर की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अपनी कदर में क्या है? दाढ़ी बढ़ाओ, मोछे घटाओ, बाल सुलहा जैसे रखो, दाएं बाएं होने न पाए, तो अपनी भी कदर रहेगी और लोगों की नजर में ऐसा आदमी अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें मनमानी हमारे लिए मुश्किल हो गया, समझे नहीं? अल्लाह उनसे भी सही अमल ले ले। और एक से ज्यादा हजरत कहते, हमारे तो हजरत हम नामे नहीं कहते। मौलाना इब्राहिम साहब दो शेर कि ऐ अज़ीज़ाने तलबा संवर जाओ तुम, बहुत पुराना शेर। ऐ अज़ीज़ाने तलबा संवर जाओ तुम, रंगे आलम यकीनन बदल जाएगा। ऐ अज़ीज़ाने
जाने तलबा, संवर जाओ तुम रंग आलम यकीनन बदल जाएगा। तुम हो सैफे नबी, तुम हो हिज़्ब खुदा। सैफ कहते हैं मेहमान को, हिज़्ब माने अल्लाह की लश्कर। देखिएगा कि तुम हो सैफे नबी, तुम हो हिज़्ब खुदा, लश्करे कुफ्र तुमसे दहल जाएगा, लश्करे कुफ्र तुमसे दहल जाएगा। और शेर देखिएगा हज़रत कि हो मुहाफ़िज़ उलूमे नबी के तुम ही, हो मुहाफ़िज़ उलूमे नबी के तुम ही, और पारे अमानत के तुम हो अमी, और पारे अमानत के तुम हो अमी। इन्ना अरज़नल अमानत अला समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल, फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिन्हा व हमलहल इंसान। वो मुहाफ़िज़ उलूमे नबी के तुम ही, और पारे अमानत के तुम हो अमी, और पारे अमानत के तुम हो अमी। तुम सदाकत दियानत से गर काम लो, तुम सदाकत दियानत से गर काम लो, नज़्म बिगड़ा हुआ फिर संभल जाएगा। तुम सदाकत दियानत। एक शेर है जरा सा, पढ़ेंगे भाई। उसी रहनुमा पर दुरूद की फरमाई बेचारे करने मौलाना कह चुके हैं, 2 शेर उसके सुना दूंगा इंशाल्लाह। और थोड़ा भैया कमजोरी का ख्याल रखो, ज्यादा बस अल्लाह कबूल फरमाए। हाँ, सिद्दीक़ सिद्दीक़ हो बड़ा इब्राहिम साहब, आप कह रहे थे हम लफड़ा कर लेंगे अगर आपने नाम नहीं पढ़ा। हाँ तो लफड़ा हो ही जाएगा। ठीक है माशाअल्लाह। सिद्दीक़ हो अदले फारूक हो, सिद्दीक़ सिद्दीक़ हो, सिद्दीक़ सिद्दीक़ हो, अदले फारूक हो, हिल्मे उस्मान हो, अज़्मे कर्रार हो। बेशक सिद्दीक़ सिद्दीक़ हो, अदले फारूक हो, हिल्मे उस्मान हो, अज़्मे कर्रार हो। जिसको हासिल ये औसाफ़े महमूदा हो, जिसको हासिल ये औसाफ़े महमूदा हो, वो फरिश्तों से आगे निकल जाएगा। जिसको हासिल ये औसाफ़े महमूदा हो, वो फरिश्तों से आगे निकल जाएगा। ए अज़ीज़ाने तलबा, हज़रत मौलाना की फरमाइश वाले वही सलाम को 2-3 शेर दरूद पाक पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी रहनुमा पे दुरूद है, उसी रहनुमा पे दुरूद है, उसी ताजवर पे सलाम है, उसी रहनुमा पे दुरूद है, उसी रहनुमा पे दुरूद है, उसी ताजवर पे सलाम है। कभी बोरिया भी फटा हुआ, कभी बोरिया भी फटा हुआ, कभी अर्श जिसका मकाम है, कभी बोरिया भी फटा हुआ। वो यतीम गुलशन दहर में, कोई गोद जिसके
یتیم گلشن دہر میں، وہ یتیم گلشن دہر میں، کوئی گود جس کے لیے نہ تھی، کوئی گود جس کے لیے نہ تھی، کبھی بکریوں کا ہے پاسباں، کبھی بکریوں کا ہے پاسباں، کبھی انبیاء کا امام ہے، کبھی بکریوں کا ہے پاسباں۔ یہی بحر صرف اس میں ابھی ہے اور اس میں کبھی اتنا فرق ہے۔ ایک شعر سن لیں کہ تیرا رمز کوئی نہ پا سکا، اس پر توجہ حضرات علماء کرام کی، کہ تیرا رمز کوئی نہ پا سکا، کہ بجز خدا کسے کیا پتا، تیرا رمز کوئی نہ پا سکا، تیرا رمز کوئی نہ پا سکا، کہ بجز خدا کسے کیا پتا، کہ بجز خدا کسے کیا پتا، ابھی ہانی کے گھر میں تھے، ابھی ہانی کے گھر میں تھے، ابھی عرش پہ ہم کلام ہے، ابھی ہانی کے گھر میں تھے، ابھی عرش پہ ہم کلام ہے، اسی رہنما پہ درود ہے، اسی تاجور پہ سلام ہے، اسی رہنما پہ درود ہے۔ خداوند قدوس ہم تمام ایمان والوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ دعا حضرت فرمانا چلیے حکم ہو جائے، آپ ہی فرمانا حضرت کہہ رہے ہیں تو اب سب کی ذمہ داری دعا کریں کہ ہم بھی نیک ہو جائیں، جتنے نے دعا کے لیے کہا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين۔ پروردگار ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائیے۔ کریم مولا ہمیں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے۔ کریم مولا جو قرضدار ہو گئے غیب سے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجیے۔ کریم مولا جو غلط مقدمات میں پھنس گئے انہیں رہائی نصیب فرمائیے۔ کریم مولا تمام مساجد و مدارس دینی مکاتب اور دینی خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے۔ کریم مولا تمام ایمان والوں کی جان اور مال عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ کریم مولا تو محافظ ہو جا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کریم مولا جو مانگ پا رہے ہیں وہ بھی عطا فرمائیے۔ بہت سی خیر کی چیزیں مانگے سے رہی، جن جن خیر کی چیزوں کو تجھ سے تیرے حبیب علیہ السلام نے مانگا، پروردگار وہ تمام خیر کی چیزیں ہم ایمان والوں کو بغیر مانگے ہی عطا فرما دیجیے۔ کریم مولا ہم تو ایسے بھکاری ہیں کہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا۔ کریم مولا تو سب کی جھولیاں بھر دے، تیرے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی۔ واللہ غنی وانتم الفقراء، پروردگار بے شک تو ہی تنہا غنی، ہم سب کے سب فقیر تیرے سامنے بھیک کے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ کریم مولا لاج فرما لیجیے۔ کریم مولا ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے صدقے قبول فرما لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔